Hi friends, good evening. Welcome to this YouTube session on Statement of P&L Format. Yeah, so today we'll discuss Statement of P&L का format as per your Schedule 3. See, ये जो YouTube session है ना, these are basically to make you understand the style in which we are teaching, the material which we provide, so that you are able to understand and take a better decision whether to take basically the subscription at Unacademy or not. Now, फिर से बता दूं, today we are going to discuss a statement of P&L as per your Schedule 3. Now, Schedule 3 क्या है? Schedule 3 क्या है? It's a part of Companies Act. And Schedule 3 के अंदर आपको format of balance sheet and P&L दिए हैं. I already taken 2 YouTube classes. एक था Introduction to Schedule 3. उसके बाद हमने किया था Balance Sheet Format. And आज हमारा जो session है, that's basically for your P&L format as per Schedule 3. Now, before I start, let me just show you the glimpse of the batch which is running at Unacademy. तो हमारा टीम संकल्प, we are running out the full CA intermediate basically coaching. I take over there your paper number 1 accounting. तो CA intern November 23 exam. CA intern November 23 exam. I am taking paper number 1 accounting. It's a regular course. Approximate duration है इसका around 200 hours. ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 13th of February से and this batch will get completed on 31st of May. Now sir, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. Can I join now in the batch? Yes, आप ज्वाइन कर सकते हो. Don't worry about it. मैंने ऐसे ही टॉपिक लिए हैं which doesn't have any connection with the things which are done. तो अब जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें जो पीछे के टॉपिक हो गए doesn't have any linkage between them. प्लस ये जो हमारी बैच चल रही है इवनिंग 6 to 8 PM चल रही है. द लैंग्वेज विच आई एम यूजिंग इज हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे अभी यूज कर रहा हूं. एंड व्हेनेवर यू टेक अ सब्सक्रिप्शन एट अनअकैडमी, यूज माय कोड. यूज द कोड CA Niket CANIKET. यू विल ऑलवेज गेट सम स्पेशल डिस्काउंट. चलो चलते हैं आज के सेशन पे. इट्स अ Schedule 3 स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट Schedule 3. इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट. उसके अंदर है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द कंपनीज. एंड Schedule 3 के अंदर सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट्स अलाउड है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स अलाउड नहीं है. इट्स ओनली वर्टिकल फॉर्मेट अलाउड है. अच्छा, Schedule 3 है ना, इट्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. Schedule 3 के भी 3 पार्ट है. हाँ, Schedule 3 के भी 3 पार्ट है. डिविजन A is for those companies following AS, Division 2 is for those companies following Ind AS and Division 3 is for NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो Ind AS फॉलो कर रही है. तो इंडिया के अंदर देयर आर 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आई रिपीट, इंडिया के अंदर देयर आर 2 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड. वन इज अ नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा Ind AS. Ind AS इज एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है. तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए Ind AS है, which is actually based on IFRS, International Financial Reporting Standard. एंड बाकी जो नॉर्मल छोटी छोटी कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर्स, उन सब के लिए बेसिकली AS है. तो डिवीजन 3 के 3 पार्ट, डिवीजन 1 या Schedule 3 के 3 पार्ट, डिवीजन 1 is for companies following AS, डिवीजन 2 is for companies following Ind AS and division 3 is for companies NBFCs which are following Ind AS. अच्छा, for CA intermediate, इंटर के अंदर Ind AS नहीं आते. Ind AS comes in your CA final. तो in your CA inter only division 1 is applicable. अच्छा, तो division 1 is for the companies following AS. इसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, P&L का फॉर्मेट है. बैलेंस शीट फॉर्मेट I already taken separately. Today I am taking statement of P&L का फॉर्मेट. Let's begin with statement of P&L format. Okay. तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द फॉर्मेट एज पर Schedule 3. नाउ जो P&L अकाउंट होता है वो ऑलवेज फॉर द ईयर होता है. बैलेंस शीट इज एज एट अ गिवन डेट, P&L अकाउंट इज फॉर द ईयर. तो इफ यू चेक यहाँ पे, इट्स फॉर द ईयर एंडेड. एंड अंडर योर Schedule 3 मैंडेटरी राउंडिंग ऑफ. अंडर योर Schedule 3 मैंडेटरी राउंडिंग ऑफ मीन्स आप पूरा फिगर नहीं लिख सकते. आपको फिगर्स देने या तो हंड्रेड्स में, या तो थाउजेंड्स में, या तो लैक्स में, या मिलियंस में, या क्रोर्स में, बट इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ. फुल फिगर कैन नॉट बी गिवन, इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ मैंडेटरीली. अच्छा, एवरी आइटम जो बैलेंस शीट P&L में है, इट हैज टू बी क्रॉस रेफरेंस विद अ नोट. एवरी आइटम जो बैलेंस शीट P&L में आ रही है उसकी एक नोट बनती है. अच्छा, जैसे बैलेंस शीट में वर्ड आया शेयर कैपिटल, तो देयर विल बी अ नोट ऑफ शेयर कैपिटल डिस्क्राइबिंग उसके अंदर क्या क्या है. सेम वे यहां पे वर्ड आया से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसकी नोट बनेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीजें.
रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज कितना है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कौन से हैं. तो हर एक आइटम की देयर इज ऑलवेज अ नोट एंड वी आर रिक्वायर्ड टू गिव करंट ईयर फिगर एज वेल एज प्रीवियस ईयर फिगर. तो जब भी आप बेसिकली शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हो, इट्स मैंडेटरी टू गिव प्रीवियस ईयर कॉलम. तो एवरी आइटम क्रॉस रेफरेंस विद अ रिलेटेड नोट एंड ये आपका करंट पीरियड एंड ये प्रीवियस पीरियड. ठीक है. अब जो आपका पीएनएल है ना, इट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. रिपीट, पीएनएल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. सर ये कहां लिखा है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. डू वन थिंग, थोड़ा नीचे आ जाओ. इफ यू सी, यहां पे आपको मिला प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. दिस इज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. फिर आप चेक करो, आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ये बिफोर टैक्स है. फिर आपका आया टैक्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स. तो ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, दिस इज बिफोर टैक्स. अच्छा, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला था वो आफ्टर टैक्स था, तो उसके ऊपर सारे उसके सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, वो सारी चीजें थी. अच्छा, तो डिसकंटिन्यूइंग का बिफोर टैक्स, फिर डिसकंटिन्यूइंग का टैक्स एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग आफ्टर टैक्स. तो सिंपल वर्ड्स में आपके जो प्रॉफिट लॉस है वो पहले 2 पार्ट में पीएनएल डिवाइड हो गया, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस. अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? किसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? जिसको हम बंद करने वाले हैं. डिसकंटिन्यूइंग, इट्स नॉट डिसकंटिन्यूड. इट इज नॉट डिसकंटिन्यूड, इट्स डिसकंटिन्यूइंग, जिसको हम बंद करने वाले हैं. इमेजिन Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited, they have a business of refinery, they have a business of chemicals, they have a business of textile. You know Vimal brand for textile. So that is also of Reliance. Now suppose Reliance ने announcement किया. If Reliance has made an announcement, they are going to shut down textile division. अच्छा, रिलायंस ने अनाउंस किया है दे आर गोइंग टू शट डाउन टेक्सटाइल डिवीजन. आज के आज बंद नहीं होगा, इट विल टेक टाइम. तो टिल द टाइम टेक्सटाइल डिवीजन इज शटिंग डाउन, जब तक वो शट डाउन नहीं होता तब तक उसके सारे डेटा विल कम अंडर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. तो वी ऑलरेडी अनाउंस कि हम इसे बंद करने वाले हैं, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आएगा. अच्छा, तो सबसे पहले योर प्रॉफिट लॉस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अच्छा, नाउ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में यू विल गिव ऑल डिटेल्स. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आप बहुत सारी डिटेल दोगे. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, उसका टैक्स, एंड देन यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स. तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ज्यादा डिटेल्स फेस पे नहीं आएगी. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ज्यादा डिटेल्स फेस पे नहीं आएगी, बट हाँ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स. तो आप चेक करो, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आपकी इनकम, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस. तो एक्चुअली यहां पे हेडिंग आना चाहिए इनकम, यहां पे हेडिंग आना चाहिए इनकम, एंड ये जो है सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है. तो दिस इज इनकम, उसके बाद एक्सपेंसेस. अच्छा, इनकम के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड टोटल इनकम. अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माने ऑपरेशन रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, वो सारे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अदर इनकम विल बी काइंड ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. तो डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वो सारी आपकी अदर इनकम. अदर इनकम रिलेट्स टू, दिस इज, it relates to income from investments. ओके, फिर से बता दूं, ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डेटा है. डिसकंटिन्यूइंग में ये सारे इनकम एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं. वी डायरेक्टली स्टार्ट विथ
प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में सब आएगा। तो इनकम साइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम। अब मैं जा रहा हूं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है तो दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मीनिंग दिस इज ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। कंजम्पशन है। What do you mean by material consumed? Opening raw material, purchase of raw material, raw material का closing stock माइनस करो तो आपको raw material consumed मिल जाएगा। अच्छा, one more thing, in your basically schedule 3 there's nothing called as trading account. Trading account जैसा कुछ अलग नहीं है, it's only one thing. तो we don't have trading and P&L separate, it's only one statement of P&L. इसके अंदर सेल्स परचेज भी आ जाएंगे, बाकी के खर्चे भी आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दिस इज फॉर दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। अच्छा, जो ट्रेडर है दे डायरेक्टली परचेज द स्टॉक, दे डायरेक्टली परचेज रेडीमेड गुड्स, उसको सेल करते हैं, तो दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज फॉर मैन्युफैक्चरर, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज फॉर ट्रेडर। ये है मैन्युफैक्चरर के लिए, दिस इज फॉर ट्रेडर। जो सेकेंड वाला है दैट इज फॉर एक्चुअली ट्रेडर। ये मैन्युफैक्चरर, ये ट्रेडर। ठीक है, अब आप चेक करो, यहां पे दिया है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस in inventory of finished goods, WIP, stock in trade. अब सर ये क्या है? ये क्या है? Now, if you just recall your trading account, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, it was basically in horizontal format like this. यहां पे आपके आता था ओपनिंग स्टॉक, फिर आता था यहां पे आपका परचेजेस, एंड ऑपोजिट साइड आता था आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज ओपनिंग स्टॉक 100 है, परचेज 1000 है, क्लोजिंग स्टॉक 120। तो कहने से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 980। योर COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके सामने सेल्स, यू गेट GP। तो एक्चुअली आपका ये COGS हो गया। तो COGS यूज्ड टू कम लाइक दिस, बट इन वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होगा? वर्टिकल फॉर्मेट में हाउ डज COGS कम? इन वर्टिकल फॉर्मेट COGS विल बी एज अंडर। कैसे होगा? ओके, तो यू हैव अ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, you have purchase of stock in trade। अच्छा, बताओ आपका परचेज कितना है? बताओ आपका परचेज कितना है? 1000। एंड यू हैव चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 100 becomes 120। इन्वेंट्री जो 100 है, इट इज बिकमिंग 120। चेंजेस इन इन्वेंट्री। नाउ सर, इन्वेंट्री गोइंग अप, प्रॉफिट अप जाएगा, डाउन जाएगा? इन्वेंट्री गोइंग अप, प्रॉफिट विल गो अप और डाउन। नाउ पे अटेंशन, सी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक अप जाता है, प्रॉफिट अप जाता है। यहां पे ये अप होगा, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग अप, यहां पे बैलेंसिंग GP अप हो जाएगा। So there's a direct relationship between closing stock and profit. There's an inverse relationship between opening stock and profit. Opening stock बढ़ जाएगा, GP down हो जाएगा. Opening stock increases, GP will go down. The direct relationship between closing stock and profit, inverse relationship between opening stock and profit. But sir, यहाँ पे हम लोग net stock compare कर रहे हैं. Net stock, opening 100 है, closing 120. Net stock goes up, profit goes up.
नेट स्टॉक गोज डाउन, प्रॉफिट गोज डाउन। फिर से बता रहा हूं, नेट स्टॉक, आपका नेट स्टॉक इज गोइंग अप, प्रॉफिट शुड गो अप, नेट स्टॉक गोज डाउन, प्रॉफिट गोज डाउन। अच्छा, तो स्टॉक गोज अप, प्रॉफिट शुड गो अप, प्रॉफिट शुड गो अप, हम लोग एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट अप होना चाहिए तो एक्सपेंस रिड्यूस कर दो, एक्सपेंस रिड्यूस कर दो, प्रॉफिट अप हो जाएगा। तो चेंजेस इन इन्वेंटरी हम एक्सपेंस साइड में लिख रहे हैं, हम एक्सपेंस साइड में लिख रहे हैं, तो यहां पे मैं -20 लिखूंगा। I'll write it as -20, आपका COGS हो गया 980। ओके, तो if stock goes up, profit should go up, we deduct it from expenses. Stock goes down, profit should go down, we add it in expenses. Okay, so I just write over here. Stock goes up, comma, profit should go up. So we deduct it from expenses. तो expenses में से deduct कर देते हैं। Okay, stock goes down, profit should go down. So we add it in expenses. अच्छा, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री, यहां पे स्टॉक इज गोइंग अप, हमारे क्वेश्चन में यहां पे स्टॉक इज गोइंग अप, प्रॉफिट शुड गो अप, हम एक्सपेंस में से डिडक्ट कर देंगे 20। तो एक्सपेंस में परचेज 1000 -20 इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, नेट हो गया 980। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आर यू गेटिंग इट? तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑपोजिट क्लोजिंग स्टॉक आता था। सर वर्टिकल फॉर्मेट में क्या करते हैं? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। स्टॉक गोइंग अप, प्रॉफिट शुड गो अप, तो उसे नेगेटिव दिखाएंगे। स्टॉक गोइंग डाउन, प्रॉफिट शुड गो डाउन, उसे ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। इफ स्टॉक इज गोइंग अप, इसे नेगेटिव दिखाएंगे, प्रॉफिट शुड गो अप, एक्सपेंस में से कम करेंगे। इफ स्टॉक इज गोइंग डाउन, प्रॉफिट शुड गो डाउन, यहां पे ऐड कर देंगे। तो एक था आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री बट अदर देन रॉ मटेरियल होगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री अदर देन रॉ मटेरियल, बिकॉज रॉ मटेरियल ऊपर हमने कंजम्पशन लिया है, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कवर्ड, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कवर्ड, दिस इज अदर देन रॉ मटेरियल, other than raw material as, वो ऑलरेडी कवर्ड हो गया है, दिस इज अदर देन रॉ मटेरियल। सर क्यों? रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कवर्ड हियर, वो ऊपर ऑलरेडी कवर हो गया था। ओके, द एक्सपेंसेस साइड में रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ऑल योर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय, उनका सैलरी, उनका बोनस, उनका पीएफ, उनका ग्रेजुएटी, कुछ भी, वो सारे एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, टैंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, इनटैंजिबल पे वर्ड अमोर्टाइजेशन होता है, एंड देन अदर एक्सपेंसेस। Now other expenses के अंदर आपके सारे all your admin and selling expense other than salaries will come here. All your admin selling expense will come here other than salaries. So all admin and selling expenses will come here other than salaries. Salaries ऊपर गया एम्प्लॉय कॉस्ट में, बाकी आपके सारे एडमिन सैलरी, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस सारे यहां पे। ओके, रेंट पेड, डज इट कम अबाउ? अगर कुछ ऊपर नहीं आ रहा है वो सारा यहां पे, तो रेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, मोबाइल,
electricity, वो सारे everything now falls under your other expense. So other expense will be a kind of bigger head जिसके अंदर बहुत सारा खर्चा जा रहा है. So all your admin and selling expense will come here other than your salaries. अच्छा, तो expenses में raw material consume, purchase of stock in trade, changes in inventory, employee cost, finance cost, depreciation, amortization and other expenses. ये आ गया आपका total expense. ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस. ओके, तो ऊपर था टोटल इनकम, नीचे आया टोटल एक्सपेंस. और टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट. टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट है. दिस इज प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. डिडक्ट करेंगे एक्सेप्शनल आइटम, मिला प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. डिडक्ट करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स. डिडक्ट करेंगे टैक्स, मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये टैक्स को डिडक्ट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अच्छा, तो यू आर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. डिडक्ट करो एक्सेप्शनल आइटम, यू आर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. डिडक्ट करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यू आर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एंड फिर हम डिडक्ट करेंगे टैक्स को. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? What is the difference between exceptional item, extraordinary item? It is not defined under Schedule 3. The exceptional item, extraordinary item is not defined in Schedule 3. तो सर कहाँ से पता चलेगा? Accounting Standard 5. अच्छा, तो AS5 ने क्या बोला? Accounting Standard 5 ने क्या बोला? Accounting Standard 5 ने बोला extraordinary items are those items which are distinct from your routine activities. Extraordinary items are those items which are clearly distinct from your routine activities and are not expected to recur again. तो कहना इसे AS5 ने extraordinary item की definition दी. Extraordinary items are those items which are clearly distinct from your routine operations and are not expected to recur again. तो जो अलग है from your routine activity, not going to recur again, वो आपका extraordinary है. अब सर क्वेश्चन आएगा exceptional क्या है? अच्छा, एक्सेप्शनल की डेफिनेशन तो AS5 में भी वर्ड नहीं है, तो स्केड्यूल 3 में तो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया नहीं है. AS5 में ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट हाँ AS5 ने एक और चीज बोली है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इफ दे आर ऑफ सच साइज एंड नेचर. ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट दे आर ऑफ सच साइज एंड नेचर कि उनका सेपरेट डिस्क्लोजर विल बी बेटर फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल्स, तो आप उसे अलग दिखाओ. ऑर्डिनरी एक्टिविटी है बट सच साइज एंड नेचर. इफ अगर आपको लग रहा है कि यूजर के लिए बेटर है आप उसे अलग दिखाओ, तो देन यू शो इट सेपरेटली. अच्छा, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ सच साइज एंड नेचर आर एक्सेप्शनल आइटम, जिसको अलग दिखाना चाहिए. व्हाट इज एक्सेप्शनल आइटम? दिस आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज but of such size and nature कि उनका separate disclosure is better, that their separate disclosure is better for the user to understand financial statement. अच्छा सर, आप थियरेटिकली बोल रहे हो ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ सच साइज एंड नेचर जिसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए उसको हम एक्सेप्शनल बोलेंगे. एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी. दिस आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? एनी एग्जाम्पल्स? नाउ सी, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं ना, समथिंग विच वॉज नॉट थॉट, सोचा नहीं था और हो गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सोचा नहीं था और हुआ, दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड जो मालूम था होने वाला है, समथिंग विच वॉज थॉट ऑफ, मालूम था होने वाला है, बट इट्स ऑफ सच साइज एंड नेचर, बड़ा है, यू शो इट एज एक्सेप्शनल. अच्छा, मैंने एक लैंड खरीदी, आई परचेज अ लैंड, कहने से एक दिन बेचूंगा, एंड नाउ देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. लैंड खरीदा, मालूम है एक दिन बेचने ही वाला हूं, तो ह्यूज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, एक्सेप्शनल. अच्छा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, मालूम है एक दिन बेचने ही वाला हूं, ह्यूज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्शनल. अच्छा, डेटर है, बैड डेट होते रहते, डेटर है, बैड डेट होते, बट बहुत बड़ा बैड डेट आया, एक्सेप्शनल आइटम.
तो ये सारे ऑर्डिनरी एक्टिविटी है बट ऑफ सच साइज एंड नेचर. बट अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो वो सारे सोचा नहीं था एंड हो गया. तो अर्थक्वेक, फ्लड, तो लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लॉस ड्यू टू एनिमी एक्शन, वॉर के कारण देयर इज अ डैमेज. तो पाकिस्तान ड्रॉप्स अ बॉम्ब डायरेक्टली ऑन योर फैक्ट्री, तो देयर इज अ डैमेज ड्यू टू वॉर. वो सारा सोचा नहीं था एंड हो गया. दे आर ऑल क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी. वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है. तो सी, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, आई नो बेचने वाला हूं, तो बम्पर प्रॉफिट आया या बड़ा लॉस आया, यू शो देम सेपरेटली, वो एक्सेप्शनल है. बट लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, लॉस ड्यू टू एनिमी एक्शन, ये सारे सोचा नहीं था हो गया, दैट ऑल कम्स अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो अंडर योर शेड्यूल 3 आपके इनकम में से एक्सपेंस निकालो. यू आर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. डिडक्ट करो एक्सेप्शनल आइटम, आपको मिला प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. डिडक्ट करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपको मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नाउ यू डिडक्ट टैक्स. नाउ टैक्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, डिफर्ड टैक्स एंड करंट टैक्स. अब सर ये करंट टैक्स क्या है, डिफर्ड टैक्स क्या है, विल कम टू इट लेटर. तो करंट टैक्स क्या है, डिफर्ड टैक्स क्या है, विल कम टू इट लेटर. डिफर्ड टैक्स इज एज पर योर AS 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से आता है. तो टैक्स को डिडक्ट करेंगे, फिर मिला आपको प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स. मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए बहुत सारी डिटेल देते हैं. दिस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स. अब जाते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. डिसकंटिन्यूइंग में इनकम, एक्सपेंस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, उसका टैक्स, फिर आपको मिला प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स. अच्छा, तो ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दोनों का टोटल करो, दैट्स टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, दोनों का टोटल करो, दैट इज योर टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. प्लस अब आप अर्निंग पर शेयर, EPS, तो पर शेयर कितना अर्निंग हुआ, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन फेस. ये आपका टोटल अर्निंग है, दिस इज योर टोटल अर्निंग. अब पर शेयर कितना अर्निंग हो रहा है, दैट इज टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन फेस. तो यहां पे आप चेक करो, दैट इज EPS, अर्निंग पर इक्विटी शेयर. एंड सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, वो हम तब देखेंगे. तो अर्निंग पर शेयर दो टाइप के होते हैं, बेसिक एंड डाइल्यूटेड, विच विल लर्न इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20. तो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ SOPL एज पर शेड्यूल 3. तो शेड्यूल 3 में ट्रेडिंग P&L अलग अलग नहीं बनता है, देयर इज ओनली वन थिंग, स्टेटमेंट ऑफ P&L. I hope you enjoyed our session. If you liked it, do share it to all your friends. And yes, our batch is going on. मैंने आपको बताया ये जो सेशन है इसका पर्पस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द वे वी टीच, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई फैकल्टी ऐसे पढ़ा रही है, मटेरियल ऐसे दे रही है, एंड यू आर एबल टू टेक अ राइट डिसीजन अबाउट योर कोचिंग. हमारी बैच फॉर CA इंटरमीडिएट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. ये स्टार्ट हुई थी 13 फरवरी को, एंड होने वाली है 31 मई को. I am taking a full subject of accounting. It's a regular batch and timing daily evening 6 to 8 p.m. Sir, already start हो गई. Can I join now? Yes, you can join now. There won't be any problem. And anytime you're taking any subscription of Unacademy, कोई भी level का subscription ले रहे हो, CA Foundation, Inter Final, even not CA other courses, कोई भी subscription ले रहे हो, you can use my code CA Niket. You will get some special discount. That's it for today. फिर से कल मिलेंगे. We'll be meeting tomorrow. Tomorrow we have a session Basics of Departmental Account. तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट, उसका बेसिक्स. We'll understand the basics. Why we should find out department wise profit. We'll understand it tomorrow. So that's all folks. आज का खत्म, कल फिर से मिलते हैं. Till then, bye bye. Take care.